Health Education Lecture Series. All the listeners of Health Education Lecture Series, welcome to my show, Health Education Lecture Series. I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. My clinic address is 7021 Village Parkway, Dublin, California, 94568. My phone number is 408-687-1899. Email address homeomedicine, HOMEOMEDICINE @yahoo.com. Anytime when you are tired of any treatment, please call me 408-687-1899 for best homeopathic treatments. And always at the age of 75, with 50 years of my practice experience, I am declaring that whosoever wants to get treatment from in homeopathic medicines from me, they are welcome to pay whatever their pocket allows. But make sure you can take the eggs, the hen should survive. Ultimately, ultimately, in these conditions, keep track and call homeopathic doctor Gurdeep Singh Sandhu with 50 years of medical practice, out of which teaching in medical colleges for about 26 years. And since I'm here in USA, since 96 onward, I'm teaching my community, my public, with the utmost knowledge of health education regarding how the life is created from life. In this series, as you know, we are discussing the part of the female, part of the male, how they play their role for the development of a new life in these systems. And ultimately, this life grow on. And then we are at that junction. Okay. So we are at the position where this new life, after being started, after the meeting of sperm with the ovum, that has reached to the uterus, and after that, it has started developing. Formation of placenta, formation of umbilical cord, and the part played by the inner layer of the uterus has already been discussed. And after that, we have discussed systematically uh, the development of the baby, development of embryo at that time. That's known as embryo, not fetus. It's embryo at that time when it starts developing in the mother's womb. So, all the developments in this condition we are discussing systematically. In the first lecture, we have discussed about the formation of all the organs and the structure of the body: joints, arms, legs, head, vertebral column. And in the second phase, we have discussed that all the organs start developing. Whosoever was marked in the first trimester, it is now started developing into its normal shape. And from 13th week onward, means after 3 months of development of the fetus after fertilizations,
even before fertilization, because we are considering 2 weeks from the last week of first day of last week of menstruation. So in this way, the first trimester, we discussed that all the organs, wherever they need to be, they are spotted inside this developing embryo. In the second week, we have started that all those organs basically they start developing into their normal shape. And we discussed that the vocal cord, voice box, from where you heard my voice, it is coming up from my body. That is known as the vocal cord, and that is developed in the 13th week onward. Head attains its normal shape, skin becomes thick, more thicker, because first of all, this all stuff, the embryo was just like a moving water in a bag. It was just like a moving water in a bag, but even then, some spotting was recognized for the formation of a further development of the organs in this way. So, we discussed that after the development of vocal cord and after all the organs are developing into their normal shape, the hair starts growing on the skin. Skin becomes little more thick, and on that skin the hair grows. And then after that, fingers, hands, as they are developed, and we see the movements of all those organs which are already in formations. Hands are in formation, fingers are in formations, so we can see movement of these fingers, and it is going to the mouth, which indicates the development of the nervous system. Coordination, physical with the mental. This coordination is shown in the 14th week we have discussed, and also we have discussed about the sexual organs. This is the second proof that what will be the sex. The first proof was just philosophical. We do not know. We do not have any experiment at that time in open science that in the beginning, when sperm and ovum meets each other, what will be the sex? Yes, it is determined over there, but we are still unknown for this development. But here I'm talking about the 14th week, that the establishment of those organs, the spotting of those sex organs starts. And when it starts, and we can differentiate it, as I told you yesterday, that the female organs are inside the abdominal wall. Now there is a landmarking. Every organ has a landmarking. So landmarking of the abdomen is there. So if it is inside, the sexual organ spots are developing inside the landmarking of the abdomen, that indicates the female child. And when the spotting of the genital organ is outside the abdominal line, then it indicates the male child. So this is what we can recognize it on 14th week and 15th week. I have already discussed you. The sense organs starts developing. They basically not started, they develop it in the 15th week. And intestines develops in the 15th week. As you know, all the different parts of one organ, just like the arm. It has fingers, it has hand, palm, wrist, arm, forearm. All these things are the parts of this. They are developed separately, then the joints are formed. So in the 15th week, when the joints are formed, the same way the internal organs, they if they have started their formation in pieces, then the joints, just like the intestine we have talked about. The intestine is formed in pieces, and ultimately, in 15th week, we have told you about their conjugation means they unite each other. Movement of fetus start moving into a bag of amniotic sac. It starts moving in the 15th week, and
It is the time when ladies generally feel movements in their abdomen. Sometimes there is a phantom tumors. I have already told you, those who are eagerly waiting for their pregnancy, but they are not getting pregnant. But somehow, some of the false movements, some of the intestinal movements, or sometimes of you can say the psychological effects, it shows that the lady is having something moving in the abdomen, because she might have heard from someone that in the 16th week or the 15th week, the fetus starts moving. So she feels something is moving inside the abdomen, and then she feels that it may be the baby, but actually baby is not there. That is a phantom's tumor. So this is the time when we have to identify, when we have to differential diagnose that it is a phantom's tumors or it is a real pregnancy and the movement of the fetus in the uterus. So in the 16th week, the all the ears and nose, voice, all these things, lips, face structure, all that has been formed, and the embryo, that is the fetus now at this time, it starts hearing, means the sense organs start working: nose smelling, eyes seeing, but eyes are still closed, and ears hearing. So all these things start functioning in the 16th week, and sensitivity is increased, by which the child is sensitive to light. And in the 17th week, as we know, on the skin there is a fatty layer, which is just, you can say, I told you yesterday, with the movement of the fetus into the amniotic fluid, the thick, fatty, cheesy matter is covering the whole skin of the fetus, the head and everything over there, and that is a white color of cheesy matter, and that is known as Varnex caseosa. That starts in the 17th week. That also gives the protection to the skin, so that because this fetus is moving into the water, amniotic fluid, and there should not be any harm to the skin. So, to protect the skin, this helps the skin. And ultimately, in the 18th week, skin has a fur of hairs. The hairs grow largely on the skin. Sometimes in our body there are not too many hairs, but mostly at this stage there are many hairs grow on the skin of the baby, because fetus at that time, so that they can protect the skin, just like this caseosa, vernix caseosa, should not dissolve, should not, just like you might have seen the lentils. When we make lentils with cement and iron rods, then that iron rods are so that the cement can stuck with each other, and it gives a hardness to the lentil. The same way, the vernix caseosa should not dissolve. These hairs protects this Varnex caseosa to stay over there. So this is what we have already discussed in the previous lectures. And after that, on the 19th week of the second trimester will go up to 24th week. Okay, so in the 19th week, the fetus starts moving, jumping, and you can say the jumping is increased in 19th month. Okay, means in the fifth month, 4 months have passed at up, so 16th week, and after that it is the 2 weeks after the fourth, means it is in the fifth month, or in the fifth month the voices a child can hear, jumping increased, and it starts a sleep pattern to take rest.
All the day he jumps out, but sometimes a period comes when a lady do not feel that my baby is moving, but basically the child is sleeping. And this is mostly in the 19th month. In the 19th month and 18th month, the sleep pattern starts. Child fixed a time to sleep, but at that time you cannot see the movement of the child. But suddenly, if there be any noise, suddenly, if there will be a light on the mother's abdomen, then he jumps out. It indicates that he is sensitive to light. And also, he awakens from sleep. And then, when the light is taken out, he again go to sleep. He is silent. So it indicates a sleep pattern of the child which starts in the 18th month, 18th week, means 4.5 months. So after that, in the 20th week, the nail grows. Nail on the finger. Though these nails are the part of the skin. As I told you, the skin is formed by the ectodermal layer when it was started. But at this time, a part of the skin at the end of the organ, means the tip of the finger, it becomes hard. It becomes hard, and that is considered as nail. And nails had tendency to grow. Skin has tendency to grow up to a limited size, whereas the nails have tendency to grow more and more depending upon the genitalial conditions, genetic type of things. Okay, but sometimes they grow larger and larger, very rarely. After that, 21st week, in the 21st week, all the limbs, all the organs which are already formed, which are already developed, they cooperate with each other. Mouth cooperates with the hands, and under those conditions, the eyes are opened. Sometimes, even in the amniotic fluid, the fetus open the eyes, and also sometimes it opens the mouth and shut the mouth. So all these things happens in 21 and 22 weeks. And then one more special thing happens in this way to indicate that the ears are listening. The sense organ of the ear is listening. That happens in 22nd week. And 22nd weeks, if there be big noise outside, it jumps suddenly because he cannot hear the noise. He is more sensitive to the noise in 22nd weeks. Whenever you touch the abdomen, it jumps. Whenever you focus the light on the abdomen, it jumps. All these things. And at that time, the the hands touches the ear, hand touches the nose, and all these movements indicates that there is a cooperation of the nervous system with the organs. Or after that 23rd week, sometimes the 23rd week is a crucial period and also a period where we are at a junction that even if there be any miscarriage, or even under medical termination of pregnancy, even under accidents, we are bound to take out the baby from the mother's womb, then it has a capacity to survive outside, to survive outside of the mother. It is 23rd week. Lungs at that time are fully developed
now not functioning. Because I told you the function of the lung starts when the baby comes out of the mother's womb. And at that time 480 mm of earth mercury pressure of our environment passes on to the body of the fetus. First of all, this pressure was beared by the mother's abdominal wall, and baby was moving freely inside the abdomen. But at 24th weeks, if in case there be delivery of the baby accidentally, suddenly, or under medical termination of pregnancy, and under circumstances, then at 24th week, we can presume that if it is taken out from the mother's womb, it can survive or it can breathe. Surviving, first of all, is concerned with the oxygen, because we cannot live without oxygen more than 3 to 5 minutes. We can live without food, we have discussed already, but we cannot live without food more than 3 to 5 minutes. So, if the lungs are working, it indicates that yes, if there be any abortion, means miscarriages, this will be taken as miscarriages, or in case of certain accidental death of the mother and surgical intervention is possible at that time, then at those conditions, baby has capacity to survive outside mother's womb. And in this condition, he is capable of surviving. He is capable of surviving. And I have already told you about a story of my own practice in Court Isa Khan. When I was practicing over there was a short village, Dauliwala, from where a pregnant female came to me with severe labor pains, but it was not the time. It was not the time. It was only 30th week. At that time, we are now discussing about the 24th or 25th week, but it was about 30th week. And at that condition, she was to abort and she aborted. And that was survived under our supervisions. And now the name of that child was given from my name, Gurdeep Singh. So that happened in this thing. So here I want to remind you that this condition is possible after 24th week. After 24th week. And under these conditions, because all the organs have already been formed, all the organs internals, they have joined each other, means respiration has already started, already lungs are capable if they are put on pressure. So I told you the respiration starts when the outside of mother the womb, the pressure of 480 mm of Hg falls on the abdomen, falls on the child chest, and it immediately throws out the whatever is inside the nose and inside the mouth. And when it relaxes, at that relaxations, the air goes in. When the air goes in, it's a mechanical process. It's a mechanical process, and air goes in, and then the lungs flats. Lungs are full of oxygen at that time, and then oxygen that is passed to the system of the at that time baby, you can say. Now it is not okay. So then it starts surviving, and all other functions, the normal human functions, start working at that time. So this is what we are discussing. I discussed with you about the 30th week, whereas this condition happens in the 24th week of the pregnancy, that the lungs
are capable of carrying the oxygen. Lungs are capable of transmitting the oxygen to the blood, which is coming from the heart to the lungs to get the oxygen, and also to dispose of carbon dioxide and all other gases collected from the whole body. And then, in lieu of that, it takes oxygen and goes back and to the heart, and from where it is gone to the body. So this condition happens in 24th 25th week. At this condition, at this age, mostly the child's height is about 12 inches length, you can say, because he cannot stand, so that you can say the height. It is a lengthwise, you can say the length of the fetus at that time is 1 feet 12 inches. 1 feet. Normally, when a child is born, the normal length of a healthy child is from 17 to 21 inches, maybe more or less, depending upon the structure of the mother and father, of the genetic character, you can say. But normally, in the verb, at that time, the size of the fetus in 25th week is about 1 feet, and the weight of the fetus becomes about 2 pounds. 1 feet height or length, 2 feet at that time is the weight. So this is what happens in this area. And after that, the wrinkled skin becomes more or less. The skin, just like if you put your hands into the water, and your hands becomes washerwoman's hand type, velvety. And to protect that skin, nature produces the varnex caseosa on that. Nature produces the hair on that. Hair works like an antenna of the TV to get the responses, to discharge the responses. Okay, so all that is done by the hairs at that time. The same way, even after birth, our hair works as an antenna. Okay, so after that, the hair grows more, and the skin, which was velvety at that time because of the amniotic fluid, it becomes more tightened. It becomes more tightened, and there is less wrinkles on that. Less wrinkles on that, because inside the fat deposition has come up. Inside the circulation, the blood has started, and it is filled up. Sometime it is filled up with the blood, and it is tightened because of the air, because of the internal organs they are pushing outside. It means the skin is still becomes tight. Under this condition, that is the 25th week. In the 26th week, the brain start to give melatonin. Basically, melanin is a hormone, you can say, produced by the brain itself, and that gives color. Melatonin is a different thing, which produces sleep and the relaxation of the body. That's also produced by the brain glands. But I'm talking about the melanin. This melanin is also a salt which gives color to our eyes, to our skin, and also the hairs. At that time, most of the things, the coloring things, because our eyes are according to our mother or father, or our skin color is just if a person is a South Indian and his skin coming from his parents, that will be blackish. And that the Malpighian layer, when blood goes to the skin, oxygen and food material is taken by the cells over there, and the other remaining portion of the blood goes back, taking the garbage of the cell, but still some portion of that blood remains over there. Some portion of the blood remains over there,
and that is known as Malpighian layer. That forms a stuff inside the under the skin, you can say, that gives the color to our skin. Just like the American peoples or Canadian peoples, they are having white colors as compared to our skin. Our skin is just like a little bit brownish colors. And in the South Indians or even the African peoples, they are having black skin because the residual portion which is remaining inside after it has taken the oxygen and food material from the incoming blood and sending back the garbage and the deoxygenated blood, this portion remaining over there, residual portion, that gives the color, that gives the color to our skin, that gives the color to our eyes and all that. And that happens in 26th week of the pregnancy. It also increases the capacity of the lungs. First of all, the capacity of the lung is not that much. They are not fully flattened. And ultimately, 26th week, regularly, every day, capacity of the lungs increases, means the alveoli inside the lungs, which carry the oxygen or which form the exchange of oxygen with carbon dioxide. It's a process I have already told you that the inside the body give and take process is carried out by a process known as permeability. And that permeability is like just you decantate the tea in any decantation processes, and in that way, when you put more pressure on that, the more solid liquid material comes downward. There is no hole, there is no anything, okay, there is no hole, there is no anything which can drain up the materials from one side to the other side. But this is when everything is connected with the pressure. When everything is connected with the pressure, you put pressure on that, the more the liquid will come out. The same thing happens here at this week, that the lungs start increasing their capacity to take the oxygen and also to discharge the carbon dioxide and other gases which are coming from the body outside. So today, this time for the perhaps English lecture has stopped, and we are just near to the completion of and this we are completing this the second trimester, and we will start the third trimester development of the fetus tomorrow. Sorry, tomorrow I will not be able to deliver this lecture because of there is a I think in India that is known as Diwali, or some people say the Bandi Shed Divas, and here in Western countries this is Halloween's day. Okay, so because of these all things, people are busy, will be entertainment and all that. So that's why tomorrow I will take a break and there will be no program. And after that, there will be a continuously program. As you know, the time has changed because the Radio Pravas has started its own one station in area of Batinda, and their timings does not suit. In New Jersey, the times was different. So they have their studio in New Jersey as well, but they have started the second studio in somewhere in the Bathinda. So they said that we should start the program little late. So that's why I said, okay, and in spite of doing the Punjabi program separately, I will do all the programs in a chain as I was doing previously from 4:30 onward. 4:30 to 5, 5 to 5:30, 5:30 to 6. But now it is from 6 to 6:30 English program, and 6:30 to 7 Hindi program, and from 7 to 7:30 it is California time. And at this time, the Indian time is half an hour in advance.
If I say 6 p.m. in the evening, it will be 6:30 in the morning in India. So in that way, you can tune up your computers or phones or whatever, wherever you listen my programs. So you can tune up all those things so that you can listen since beginning of these lectures. So ऑल अभी जो टाइम है हमारा वो हिंदी लेक्चर का है, और हिंदी में भी हमने वही चीज़ आपको रिपीट करनी है कि अब दूसरा ट्रिमेस्टर शुरू हो गया। हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल पेश करता हूँ। मैं हाज़िर हूँ आपका रोज़ाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज़, और इस हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज़ में जैसा कि आप जानते हैं हम बच्चे की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जीवन से जीवन कैसे शुरू हुआ, ये एक कथावाचक शुरू हो रही है, और कथा करते-करते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि बच्चा माँ के पेट में कैसे डेवलप होता है। क्या-क्या, कब-कब होता है। जो माएँ हैं, प्रेग्नेंट हैं बच्चियाँ, उनको बहुत इंटरेस्ट होगा इस बात के लिए कि भई अब क्या हो गया? इम्तिहान तो हमने दे दिया, जैसे कल भी मैंने ये कहा था कि इम्तिहान तो हमने दे दिया, तब जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि भई क्या हो रहा है? कैसे हो रहा होगा? ये सब चीज़ें हैं। और जैसा-जैसा मेडिकल साइंस ने अब तक इसके बारे में जाना है, वो पूरे की पूरी चीज़ हम आप सब लोगों के सामने रख गए हैं कि मेडिकल साइंस ने जो हुन तक तय किया, जो हुन तक जाना, स्टेप बाय स्टेप, वो बातें मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर स्टेप पे माँ बनने के बाद, मीन्स आफ्टर ए लेडी गेट्स प्रेग्नेंट, बट मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद हर स्टेप में जो चेंज आती है अंदर बच्चे के जीवन में, उसके शरीर में, वो सब बातें हम आपको सिस्टेमेटिकली बता रहे हैं, जो आज तक मेडिकल साइंस ने जाना है। क्योंकि आज पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था। अब तो अल्ट्रासाउंड है, स्कैन्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे आप मुझे फ़ोन पे देख रहे हों, आप फ़ेसबुक पे मुझे देख रहे हों। इसी तरह ही हम अंदर बैठे हुए बच्चे को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या-क्या मूवमेंट हो रही है। ये सब चीज़ें हम आजकल ऐसा देख लेते हैं। तो वो चीज़ें मैं आप सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी जगह तो ऐसी फैसिलिटी होती ही नहीं, या जो लोग एंटीनेटल क्लिनिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, जहाँ पर प्रेग्नेंट औरतों को डे टू डे एडवाइस किया जाता है, उसकी टेक केयर की जाती है, जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, तो उन लोगों को तो ये क्यूरियोसिटी रहती होगी ना कि कैसे हो रहा है, क्या आ रहा है। तो वही बात मैंने आप सब लोगों को पहले बताई पिछले प्रोग्राम में कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऐसा ट्रिमेस्टर है जिसमें हमने ये कहा कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पहले 2 वीक माँ को भी पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। होती ही नहीं है, क्योंकि ना तो स्पर्म आया, ना ओवम निकला, तो मिलाप होने की मतलब ही नहीं है। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर इस वक़्त किए हुए काम को भी हम उसमें कंसीडर करते हैं कि भई नहीं, ये भी ज़रूरी था। अगर नहीं करते तो होना नहीं था। जैसे कल मैंने आपको कहा था ना कि दाज बनाते हैं, वरी बनाते हैं, लड़के या लड़की की शादी करनी। अगर शादी नहीं हुई, तो हम समझते हैं ठीक है भई, ये जो बनाया था सामान ये पड़ा ही है, कहीं गया तो नहीं है ना। लेकिन प्रेगनेंसी के हालात में हर बार एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, दोबारा वही चीज़ होनी शुरू होती है। और अगर प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर वो आग लगी को कुआँ तो नहीं ना पहुँचता, कुआँ खोदा नहीं जा सकता उस वक़्त। अभी आग लगी है, अभी कुआँ खोदोगे उसके बाद ऐसा करें तो नहीं ना हो सकता। तो इसके हालात से ये जो पहले 2 वीक होते हैं, वो भी हम वाएबल समझते हैं। हम ये समझते हैं ये ज़रूरी थे, क्योंकि इसके बिना आगे काम चलना नहीं था। तो ये बातें हमने सबको बता दी। उसके बाद हमने ये कहा कि 3rd वीक जो 21 डे होता है, और हर एक कैलकुलेशन में बार-बार बताता हूँ कि मासिक धर्म के फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, आखिरी महीना जो आया था उसका जो पहला दिन था, वहीं से इसको हम काउंट करते हैं। और ये 21वें दिन बच्चेदानी में पहुँच गया, 23वें दिन बच्चेदानी में ये सेट हो गया। उसके बाद इसकी इसका प्लेसेंटा बना था। प्लेसेंटा कैसे-कैसे बना था, वो हमने आपको बता दिया। ऑल कैसे-कैसे बनी थी, ये हमने आप लोगों को बता दिया। अंदर का जो डेवलपमेंट हुआ, कौन सा चीज़ क्या बनाएगी,
स्किन कहाँ से आएगी, दांत कहाँ से आएंगे, आंख कहाँ से आएगी, ये सब चीजें मैंने आप सब लोगों को बता दी थी। हार्ट कहाँ से बनेगा, फेफड़े कहाँ से बनेंगे, किडनी कहाँ से बनेगी, ये सब चीजें मैंने आप सब लोगों को बता दी थी। उसके बाद हमने कहा कि बच्चेदानी में ये जो बच्चा है ये डेवलप होना शुरू हुआ, तो बच्चेदानी का जो अंदर का लेयर है उसका क्या योगदान है, और उसको हम 3 भागों में बांटकर आपको बता दिया कि भाई एक डेसिडुआ बेसालिस है, एक डेसिडुआ कैप्सुलारिस है, एक डेसिडुआ वेरा है। और बेसालिस में आकर बेस में आकर लगा है, डेसिडुआ कैप्सुलारिस है जिसने उसको सपोर्ट किया, ना भाई गिर मत जाना मैं उठा लेता हूं। और इसी तरह ही डेसिडुआ वेरा की हमने बात आपको की। और एग्जाम्पल है, मैं ज्यादातर जहां पर हो सकता है कोशिश कर सकता हूं कि उस तरह की आम रूटीन लाइफ की एग्जाम्पल मैं आप सब लोगों को दे पाऊं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो डेसिडुआ वेरा की भी मैंने आपको बताई थी कि पार्किंग लॉट में अगर आप चले जाएं, एक पार्किंग साथ में खाली है, ट्रैफिक और भी आ रही, कहीं और ना कोई ऑक्युपाई कर ले, आपका दोस्त आ रहा है उसको गाड़ी पार्क करनी, तो आप वहां उसको रोक रख लें कि नहीं भी मेरा दोस्त आ रहा है, ये पार्क वहां पर करेगा। और डेसिडुआ वेरा जो है बाकी बच गया, वो यही काम करता है कि बच्चा डेवलप हो रहा है, इसको स्पेस चाहिए, अल्टीमेट ये मैं इसको रोक के रखता हूँ स्पेस को, और इसको जगह दूंगा जब वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। तो ये सब चीजें हमने आप सब लोगों के सामने बता दी। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर था, ये जितनी भी कहानियां हमने आपको अभी तक बनाई, ये पहले ट्रिमेस्टर की ही बात थी। और पहले ट्रिमेस्टर में ही तकरीबन अंदर के सारे अंग बनने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तब भी विजडम टीथ आता है जब बच्चा आदमी 24-25 साल का होता है, अकलदार जिसको बोलते हैं, विजडम टीथ। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट तो तब भी रहती है ना। बिल्कुल सही बात, क्योंकि शरीर में एक सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है, इसकी दो दो हिस्से हैं, एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म का मतलब ये है कि शरीर में डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रही है, टॉप कहाँ आएगा, अखीर कहाँ आएगा, ये जो बर्तन है इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना कब भर जाएगा, तो ये इस बच्चे ये जो डेवलपमेंट है शरीर की, ये कब पूरी होगी। तो हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि इसकी डेवलपमेंट पूरी 24-25 साल में होगी, उसके बाद कोई नया अंग नहीं बनता। 24-25 साल में वो दांत निकलता है और उसके बाद कोई और नया अंग नहीं बनता, बाकी डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये जो हमने कहा कि वो जो एनाबॉलिक रेट है, इसका मतलब ये है कि तब तक ये एनाबॉलिक रेट है, ये बढ़ता रहता है। हमने 5 मैं समझता हूँ रेडियो परवाज वाले अभी उनको गलत फहमी है, चलो खैर यहीं उनका शुरू कर लेते, हिंदी बाद में कर लेंगे। हेलो डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। हाँ जी सत श्री अकाल चीमा साहब। की हाल चाल ठीक है? हाँ जी, मैं हिंदी का प्रोग्राम कर रहा हाँ चीमा साहब, इस तो हाँ इस तो अद्धे घंटे बाद शुरू होना ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ऑलराइट। ਸੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कैटाबॉलिक रेट, ये इस तरह की कंडीशन है, मैं थोड़ा पंजाबी च समझावा हिंदी च, ऐसा होता है कि आपने 5 कमाए, 3 बच गए, 2 आपने खर्च कर दिए, 3 आपके बैंक में जमा हो गए, आपकी डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। तो शरीर में सेलों की बंटर और सेलों की टूट भज, उसका बिगड़ना टूटना, ये सब होता रहता है रेगुलरली एवरी डे। क्योंकि पहले लेक्चरों में मैंने आपको बताया था
कि भाई एक सेल की ज्यादा से, हाँ हम तो बोलते हैं ना कि आदमी है एक दमी, दम आया तो हम आदमी हैं, तो नहीं तो डेड बॉडी है। हमने तो लिमिट ये रख दी कि एक दम, एक श्वास, और एक जो दम है कितना है, 14 से 16 बार 1 मिनट में। और 14 से 16 बार को भी हमने बांट दिया कि एक एक श्वास आया तो आया, रुक गया तो डेड बॉडी। और मेडिकल साइंस के मुताबिक, फिजियोलॉजी की जो क्रिया है उसके मुताबिक हम बोलते हैं कि किसी भी सेल की मैक्सिमम एज 120 डेज है। आज एक सेल बन गया खून का, आज एक सेल बन गया बोन का, आज एक सेल बन गया चमड़ी का, स्किन का, किसी भी चीज का, और उस सेल की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 120 डेज है। तो मतलब क्या हुआ, अगर सांस को छोड़ दें, सांस तो पहले नंबर पे है ना, सांस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हमारी जिंदगी मैक्सिमम कहां हुई, 120 दिन की। उसके बाद फिर हम डेड है। नहीं, नहीं डेड होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि शरीर में एक ऐसा प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से हैं, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो हिस्सा है कि इस एनाबॉलिज्म में हम जो कमाई करते हैं वो होती है, और हमने ज्यादा कमाई की तो फिर एक घर से दो घर बना लेंगे, ज्यादा कमाई की तो एक खेत लिया है अब दो खेत और ले लेंगे, शरीर बढ़ेगा। एक बच्चा छोटा होता है, उसका एनाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से वो बच्चे से जवान हो जाता है। और जब जवान हो जाता है तो उसके बाद एक स्टेज आती है जब एनाबॉलिज्म रेट और कैटाबॉलिज्म रेट बराबर हो जाते हैं। 5 कमा के ले आए, अब 5 ही खर्चा है, 5 कमा के ले आए, अब 5 ही खर्चा है, बराबर हो गया। उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होती। और अल्टीमेट क्या होता है कि कैटाबॉलिक रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट होनी हो नहीं रही। जो चीज आप खाते हो ना, इस चीज से ही आपके शरीर की बनतर बननी है। इस शरीर से विटामिन, मिनरल या जो भी चीजें आपको मिलनी है ना, इस खुराक से मिलनी है। ऑक्सीजन का काम तो बर्न आउट, फूक मारेंगे कहीं तो आग बलेगी, फूक मारेंगे तो आग बलेगी, इसका तो ये काम है कि ये खुराक जब जाएगी इसको बर्न आउट करने के लिए। लेकिन इस खुराक में जो चीज निचोड़नी है, आप चाय पत्ती किसी पोने में निचोड़ रहे हो, तो जितना उसमें प्रेशर डालोगे उतनी संघनी उसमें से निकल आएगी। और अगर आपकी मुट्ठी में इतना दम नहीं है ना, आपने कभी देखा होगा मूली के पराठे लोग बनाते हैं ना, तो मूली को कद्दूकस करके उसके बाद निचोड़ते हैं। जितना आपके हाथ में दम है उतना उसमें से पानी निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा। ठीक इसी तरह ही शरीर के अंदर पूरे का पूरा जो सिस्टम है आंतड़ियों में लगा हुआ, इसमें परमिएबिलिटी का ऐसा सिस्टम है कि प्रेशर बनता है। वो प्रेशर बनने की वजह से इससे जो भी ताकत की चीजें हैं हमारी खुराक से वो निचुड़नी शुरू हो जाती हैं, उस फिल्टर होनी शुरू हो जाती हैं, और वो फिल्टर होकर हमारे शरीर के पीछे एक सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टरना चाली रीढ़ की हड्डी के साथ लगा हुआ है, लोअर बैक के साथ, और वो भरता जाता है, वो नीचे से भरता भरता ऊपर चला जाता है। और हमारी जो बाईं तरफ की जो क्लेविकल की हड्डी है, उस बाईं तरफ की क्लेविकल हड्डी के नीचे एक वेन है जो सीधी दिल को जाती है, सब क्लेवियन वेन उसको बोलते हैं। ये सारा कुछ उसमें डाल देते हैं, तो वो पहले बने हुए खून में रच के नया जो पुराना ये बनने वाला खून है वो उसमें रच जाता है, तो वही कुछ हो जाता है। हाँ जी, तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मींस कैटाबॉलिक रेट बढ़ता है। क्या इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में अब पहले भी हम 4 रोटी खाते थे या 3 रोटी खाते थे, अब भी 3 रोटी खाते हैं। पहले भी 1 कटोरी सब्जी की लेते थे, अब भी 1 कटोरी खुराक चाहे हम आप उतनी ही खा लो, लेकिन शरीर में उसको निचोड़ कर उससे कुछ ना कुछ निकालने की जो समर्था थी ना, वो उतनी नहीं रही। अगर वो उतनी नहीं रही तो इसका मतलब है कि आप 2 परोठे पहले खाते थे, 2 ही अब खाए हैं, लेकिन उससे जो आपके शरीर को चाहिए डेवलपमेंट के लिए, एनाबॉलिक रेट के लिए, वो उतना नहीं निकल रहा। इसीलिए उम्र पर जाकर
आकर ये हमारा कैटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, एनाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाता है, चाहे खुराक नहीं तो आदमी बूढ़ा ही ना हो। जिस आदमी को अच्छी खुराक मिले वो तो फिर बूढ़ा ही ना हो, है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, नेचर का अपना प्रोसेस है इन सेलों को चलाने का। ये ठीक है, थोड़ा बहुत उसको अल्टर कर सकते हैं। तो खैर ये सब चलते चलते एक बात आ गई कि हमारे शरीर की जो डेवलपमेंट है, हमारे पास जानने वाला एक मील पत्थर है कि जिसको विजडम टीथ आ गया, दैट इज नोन एज थर्ड मोलर टीथ। थर्ड मोलर टीथ। और वो जो थर्ड मोलर टीथ है ना, जब वो आ जाता है, जिसको अकल दाढ़ बोलते हैं हम लोग हिंदी में या पंजाबी में, वो जब आ जाता है उसके बाद अभी तक हम लोगों ने नोट नहीं किया कि कोई और नई शरीर में डेवलपमेंट होती हो। तो मतलब क्या हुआ, वो हमारा मील पत्थर है। और उसके बाद हम ये समझते हैं कि अब एनाबॉलिक रेट और कैटाबॉलिक रेट बराबर चलेंगे। और जब बराबर चलेंगे तो मतलब नई डेवलपमेंट तो नहीं होनी। जब आदमी 25 साल का हो जाता है ना, तो उसमें नई डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती, डिपॉजिट हो सकता है। और वो जो डिपॉजिट, पेट बढ़ गया जी, मांस बहुत मोटा हो गया जी, भारी शरीर हो गया जी, ये तो हो सकता है। और ये हो, इसका क्या मतलब है, इट्स नॉट डेवलपमेंट। ये आपकी डेवलपमेंट नहीं है, ये डिपोजिशन है। डिपोजिशन है जो उल्ट आपको नुकसान कर रही है। आपके पास पैसा जमा है ना, मुझे नहीं पता अब इंडिया में कैसे चलता हो, लेकिन आपके पास जितना पैसा जमा है ना, उसका आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जितनी प्रॉपर्टी है ना आपकी, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कमा के तो कुछ नहीं दे रही ना, और उसमें टैक्स आपसे गवर्नमेंट लेती। ठीक, अब आपका पेट बढ़ गया है, आपका भार बढ़ गया है, ये सब बढ़ी हुई चीजें जो आपको दिखाई देती है ना कि नहीं जी, ये तो मेटाबॉलिक रेट तो बढ़ रहा। मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ रहा है। मेटाबॉलिक रेट इसके हिसाब से तकलीफ में है कि इस बोझ को उसको उठाना पड़ रहा है, और नई डेवलपमेंट वो नहीं कर रहा, सिर्फ डिपोजिशन कर रहा है। तो इस हिसाब से ये हमारी तकलीफ आगे जाके बन जाती है। तो खैर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो नई डेवलपमेंट शरीर में होनी शुरू हुई बच्चे की, और उसमें प्लेसेंटा बन गया, उसमें ऑल बन गई, और उसमें इसकी बच्चे की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। और फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जितने भी अंग थे वो पूरे के पूरे बनने शुरू हो गए। और उसके बाद जो दूसरा ट्रिमेस्टर शुरू हुआ था, जिसको हमने 13th वीक कहा था, उसमें कहा था कि जितने भी अंग, मोटी मोटी बात याद रखने बहुत योग आम आदमी को, जो हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी जो सिनॉप्सिस शॉर्ट में हम आपको दे रहे हैं कि पहले 12 वीक में सभी अंगों की निशानदेही हो जाती है। दूसरे 12 वीक में जितनी निशानदेही हुई है उसके ऊपर फिर उसारी शुरू हो जाती है। स्किन है तो पहले तो वो पानी की तरह डल्क रही, जैसे बुकाने में आप बैलून में पानी भर ले तो वो जैसे हिलता जुलता है ना। मैंने कल मरकरी की एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि मरकरी पारा अगर हाथ पे रख के किसी ने देखा हो तो देखो वो ऐसे मूव कर रहा है। दीवार तो बाहर नहीं है, मेम्ब्रेन तो बाहर नहीं है, लेकिन वो मूव करता रहता है। और दूसरी एग्जांपल मैंने आज आपको दे दी कि अगर किसी बैलून में पानी भर दो और हथेली पे रख दो तो देखो कैसे हिल रहा है। इस तरह की स्किन होती है। और अब क्या हमने कहा कि ये जो सेकंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट हुआ 13 वीक के ऑनवर्ड, 12 वीक पूरे हो गए, उल्टियां वगैरह बंद हो गई, नहीं बंद हुई तो उसका हमने बता दिया आपको कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होगा और उसकी प्रॉब्लम जो है उसको हल करने की जरूरत है। ये हमने आपको बता दिया कि अगर पहले महीना आने के 5-7 दिन पहले किसी बच्ची को मेंसेस में ब्लीडिंग आती है, स्पॉटिंग होती है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का, लेकिन इंडिकेशन भी है आपके लिए कि भाई कुछ ऐसी कमी पेशियां हैं कि ये ब्लीडिंग ज्यादा ना बढ़े, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे हमने बताया था विटामिन ई की, विटामिन के की कमी है, विटामिन सी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो वो पूरी हो जाए ताकि ये ब्लीडिंग ज्यादातर ना आगे बढ़े। हुई इसलिए है कि बच्चा माँ के पेट में एडजस्ट होने लगा है, तो जहां एडजस्ट होने लगा वहां से लीकेज हो गया। नॉर्मल हालात में लीकेज होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ है तो ये इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी तो हो गई। अब आगे ना ये ब्लीडिंग बचे, इसके लिए आपको प्रिकॉशन करना है। और दूसरी बात हमने ये भी यहां बताई थी कि भाई 12 वीक के अंदर अंदर
अगर ये ब्लीडिंग आती ही रहती है कि जब भी बच्ची टॉयलेट पे जाती है, जब भी बैठती कमोड पे, तो स्पॉट्स ही होना शुरू हो जाता है। और इसको रोकने की जरूरत है। ये इंडिकेशन है कि आपका बच्चा पूरी तरह डेवलप नहीं कर सकता, या पूरी तरह इसकी एडजस्टमेंट वहां नहीं हुई है। ये इसकी इंडिकेशन है। उसके बाद हमने ये कहा था कि भाई जो उल्टियां है, ये फर्स्ट वीक जो आपका 12th वीक था, तब तक आकर इसको बंद हो जानी चाहिए। 8वें से शुरू होनी चाहिए अगर होनी है, तो जरूरी नहीं है। अगर एडजस्टमेंट पूरी है तो ये 8वें से 12वें वीक तक खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं होती है तो फिर उसके लिए उपचार करने की जरूरत है, क्योंकि आर एस फैक्टर या और सब कमियां पेशियां हैं, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हो सकती हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो फिर हमने ये कहा आपको कि बच्चे की डेवलपमेंट में जितने भी अंग पहले ट्रिमेस्टर में, पहले 3 महीने में, 12 वीक में बने थे, उन सब की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। जहां रसोई बनानी थी, जहां लिविंग रूम बनाना था, जहां बेडरूम बनाना था, अब उसकी आगे उसारी शुरू हो गई। स्किन बन गई थी, नाक बन गया था, कान बन गया था, दिल बन गया था। अब उनकी पूरी डेवलपमेंट होनी शुरू होगी आगे। सभी साधारण तौर पे आपके लिए समझने की यही बात है कि भाई अंग बनने शुरू हो गए। और अंगों में मैंने आप लोगों को एक खास बात बता दी थी कि जब 13-14 वीक शुरू होते हैं, तब ये जो सेक्स अंग हैं, ये बनने शुरू हो जाते हैं। अब सेक्स अंग बनने शुरू हो जाते हैं, इसकी बात मैंने आपको पहले पीछे ले जाकर कही थी कि जब स्पर्म और ओवम आपसे मिले थे, वो 14 दिन के बाद 15 और 16 दिन, ये 2 दिन ऐसे पीरियड हैं जो आपकी किस्मत का फैसला करेंगे। ये वो समय, क्योंकि ओवम के पास तो खुराक है, वो तो अभी घर से निकला है। स्पर्म टेस्टिस से निकलने के बाद प्रोस्टेट से होते हुए औरत के वेजाइनल एरिया में गया, वहां इसको लड़ाई हुई, डेथ हुई, क्योंकि ये बेचारा एल्कलाइन मीडिया में रहने वाला था। वहां वेजाइनल एरिया में जो मीडिया था वो एसिडिक था, वो मर जाएंगे। एक एजैकुलेशन में 120 से 200 मिलियन तक भी स्पर्म एजैकुलेट होते हैं, और सभी के सभी बेचारे वहां पर काल का ग्रास बन जाते हैं वेजाइनल एरिया में, क्योंकि वहां पर एसिड ज्यादा होता है। ये बेचारे रहने वाले थे एल्कलाइन मीडिया में। और इस हालात से अब मच्छी पानी में रहती है, बाहर आकर बहुत ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती, क्योंकि वो ऑक्सीजन ही पानी से लेती है, और बाहर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और हम लोग पानी में कितना रह सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। हर आदमी का रहने का अपना अपना नेचर ने जैसे बनाया है, वो उसी तरह चल रहा है। और ये बेचारे स्पर्म जो हैं टेस्टिस में बनते भी पेट के बाहर हैं, इनको एक तो हीट नहीं चाहिए, दूसरा इनका अल्कलाइन मीडिया होता है। वेजाइनल एरिया में जो मीडिया है वो एसिडिक है। वो एसिडिक मीडिया होने की वजह से ये बहुत सारे मर जाते हैं। दूसरी एक और बात यहाँ इनके इनके सामने पेश आ जाती है कि वेजाइनल एरिया में जब स्पर्म जाते हैं, उसी वक्त ही वेजाइनल एरिया के WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल, चिट्टे खून के कण, जो हमारी फौज होती है शरीर की, हमारे शरीर में जो जितना भी बीमारियों की प्रोटेक्शन करती है, या कोई हम तंदुरुस्त हो सकते हैं, बीमारी से उठ सकते हैं, ये सारी कार्रवाई हमारी WBC वाली फौज करती है। पुलिस, CRP, BSF, मिलिट्री वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, इसके अलग अलग विंग हैं, जैसे ल्यूकोसाइड, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारे इसके अंग हैं। उसी तरह के WBC के भी इसी तरह के अंग हैं शरीर के अंदर, और वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो लेकिन वो ये समझते हैं ये स्पर्म, ये तो बाहरी इंजाम है, ये तो बाहरी कोई अटैक हो गया है, और वो भी इसको किल करते हैं। और इतने ज्यादा स्पर्म, 120 टू 200 मिलियन तक स्पर्म निकलते हैं, और वहां से बच्चेदानी में जो दाखिल होते हैं, जो वहां स्पर्म तक पहुंचते हैं, उसका अंदाजा जो आजकल मेडिकल साइंस के पास है, वो केवल 200 स्पर्म। और 200 स्पर्म भी जेडे बेचारे जाते हैं ना, आधे एक फेलोपियन ट्यूब में, आधे दूसरी फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। और क्योंकि दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब से का सुराख है, वो उनको बेचारे ने कौन सा दिखाई दे रहा है, वो तो घूम कर जहां रास्ता मिला उधर जा रहे हैं। और एक तरफ तो वो निकला ही नहीं है। ये भी बात हमने बार बार आपको बताई कि 1 महीने में
एक ही ओवरी जो है वो ओवम पैदा करती है, दूसरी ओवरी रेस्ट करती है, फिर दूसरे महीने पहली ओवरी रेस्ट करती है और ये ओवरी ओवम पैदा करती है। तो जो आधे 200 बने, 200 से भी आधे एक तरफ चले गए, आधे दूसरी तरफ चले गए, तो फिर बेचारे 100 रह गए। और हजारों लाखों की गिनती में आने के बाद 100 ही हैं जो उस रास्ते में जा पाए हैं जहां उनको वो मिलेगा। अब तब तक पहुंचते हुए इनके पास खुराक नहीं है, इनके पास खुराक नहीं है, मरते मराते अब इनके पास बहुत कम खुराक है कि ज्यादा से ज्यादा ये कुछ घंटे जी सकते हैं, वहां से कुछ खुराक मिलेगी मैक्सिमम 2 दिन। और जो ओवम निकला है वो तो अभी निकला ही घर से है, ओवरी से है, उसके पास खुराक है। और अगर ओवम स्पर्म आपस में मिल गए तो फिर स्पर्म को भी उसकी खुराक का हिस्सा मिल जाएगा और दोनों सरवाइव करेंगे, इकट्ठे जिएंगे, इकट्ठे मरेंगे। और अगर नहीं मिला तो फिर स्पर्म बेचारे मर जाएंगे। वो ऑटोलाइसिस का प्रोसेस मैंने बार बार इन प्रोग्रामों में आप सब लोगों को बता दिया कि ऑटोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अपने आप शरीर को रूढ़ी बन जाती है। हमारे घरों का कार बाहर जाता रहता है, रूढ़ी बन जाती है, गल जाती है, साल के बाद हम वो खेतों में डाल देते हैं। इसी तरह कोई भी चीज जो है, अब पारसी लोगों को देखा ना, रतन टाटा बेचारा आ गया और उसका तो उन्होंने उसी तरह से सिख विधान के मुताबिक ही संस्कार किया है। लेकिन जो पारसी लोग हैं वो डेड बॉडी को किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं और वहां पर अगर चील कौए जो भी कुछ आते हैं, ईल वगैरह आते हैं, वो उनको खा जाती हैं और बाकी जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। जो कार्बन है, कार्बन में जो कैल्शियम है, कैल्शियम में, पोटेशियम में, ब्रह्मांड का जो हिस्से है उसमें वो सब हो जाता है, क्योंकि यही खुराक खाते हैं हम, इसी धरती से पैदा होती है, इसी धरती से वही चीजें लेकर वो आती है और वही हमारे शरीर का हिस्सा बनती हैं। और जब हम शरीर खत्म हुआ वही चीजें शरीर से निकलती हैं, इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाती हैं। तो खैर इस हिसाब से जैसे ही वो दूसरा जो 14 के बाद 15वां 16वां दिन क्यों क्रूसील है, इसीलिए क्रूसील पीरियड है, इसीलिए आपकी किस्मत का फैसला करने वाला दिन है कि ये अगर उस दिन प्रेगनेंसी हो गई, अगर इस समय तक स्पर्म को ओवम का मिलाप हो गया तब तो प्रेगनेंसी आगे चलेगी। और अगर स्पर्म को उस वक्त तक नहीं मिला, इन टाइम नहीं, बहुत सी प्रेगनेंसी है, लोग 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल शादी के बाद, 5-5 साल शादी के बाद उनको बच्चा नहीं होता। और बाकी सब कार्रवाइयां, क्योंकि इसीलिए मैं इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, एक तो एसिडिटी ज्यादा होती है, बहुत से स्पर्म मर जाते हैं। दूसरा मैंने ये कहा कि जो सीमेन है उसकी नॉर्मल क्वांटिटी 3 to 5 ml है, 3 to 5 ml है। अगर क्यों रखी 3 to 5 ml कुदरत ने कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि वो जो कर्व है, वेजाइना का कर्व है जहां पर इसको डिपॉजिट होना है, और वो कर्व में अगर 3 ml 3 मिलीलीटर स्पर्म डिपॉजिट किया जाए तो वो ऊपर से बच्चेदानी के, जैसे हमारे घरों में छत होती थी ना, छत में मुग रखा था, सुराख रखा होता था, और वो जो ऊपर से बच्चेदानी का मुंह वेजाइनल एरिया में खुल रहा है वो उसको टच करना चाहिए। और अगर उसको वो टच ही नहीं करता तो स्पर्म बेचारे जंप तो कर नहीं सकते, वो तो रेंग सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रेंग सकते हैं। इसलिए कुदरत का ये नियम है कि जो सीमेन का नॉर्मल क्वांटिटी है 3 ml to 5 ml होनी चाहिए। ज्यादा हो ठीक है, कम होगी तो उसमें ये कमी पेशी आएगी कि वो जो बच्चेदानी का हेठा मुंह नीचे लटक रहा है वजाइना एरिया में, वो उसको टच ही नहीं करेगा। एक तो बेचारे मर रहे हैं एसिड से, दूसरे वो मार रहे हैं डब्ल्यूबीसी इनको, वहां के वेजाइनल एरिया के भी। तो ये तो बाहर गए, बाहरी आदमी आ गए, कौन आ गया यहाँ पर, और बचते बचाते उसको जाना था जहां रास्ता मिले, अब वो रास्ता वहां टच ही नहीं करता उसको, कैसे जाएंगे। और इंग्लिश चैनल बोलते हैं ना, अमेरिका से रोड बाई रोड इंडिया को जाना हो ना तो रास्ते में इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल का मतलब है कि वहां पर रोड नहीं जाती, कुछ एरिया समुंदर का हमें उसी तरह पार करना पड़ता है। कार पे भी जा रहे हैं ना
तो वहां वो कार भी उस समुद्र जहाज में रख कर फिर आगे आपको ले जानी पड़ेगी, और फिर आगे जाकर वो धरती आ जाएगी। तो फिर अब इराक, ईरान, ये वो सारा निकलते, पाकिस्तान निकलते इंडिया पहुंच सकते हैं। और इसी तरह ये एक ऐसा एरिया है जहां पर वो जा नहीं सकते बेचारे, और इंग्लिश चैनल पास करने वाली उनकी बात है। तभी पास करेंगे जब इसका कोई लिंक बना होगा। तो इसलिए 3 to 5 ml सीमेंट का होना लाजमी है। दूसरा, ये एसिडिटी, कई बार एसिडिटी ज्यादा होती है, तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि जिनको कई कई साल बच्चे नहीं हुए, तो उनको सिर्फ यही चाहते हैं कि जब आप गृहस्थ करते हैं तो उस वक्त सिर्फ मीठा सोडा आपके घर में होता है ना, वो थोड़ा सा भिगो कर अंदर लगा लें, जिससे क्या होगा कि वेजाइनल एरिया का जो मीडिया है वो चेंज हो जाएगा, वो अल्कलाइन हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएंगे ज्यादा स्पर्म, और प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरी बात हमने आज आपको ये बता दी खास तौर पे कि भाई मेंसेस का काउंट करो कि कब आते हैं। हर एक मेंसेस के अगले मेंसेस आने की अगर डेट फिक्स है, डेट फिक्स मींस है पता ही है कि 28 दिन के बाद मेंसेस आ रहा है, या किसी को पता ही है कि मेरे को 30 दिन के बाद मेंसेस आ रहा है, या इवन 45 दिन के बाद ही आ रहा है, या 20 दिन के बाद ही आ रहा है। 20 दिन वाली को भी बच्चा पैदा होगा, 45 दिन वाली को भी बच्चा पैदा होगा, लेकिन नियत क्या करना है कि ओवुलेशन की एग्जैक्ट डेट क्या है, और ओवुलेशन कब है? अगले आने वाले मेंसेस के 14 दिन पहले, ये फिक्स डेट है। हमने आपको बार बार बताया कि ओवुलेशन की जो डेट है, कई कई बीबियों के मेंसेस लेट आते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि ओवुलेशन से पहले पहले जो हार्मोन थे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, एलएच हार्मोन था, ईस्ट्रोजन हार्मोन था, इनकी कमी पेशी के करके, इनमें कोई कमी पेशी है जिसकी वजह से मासिक धर्म लेट हो रहा है, और इनकी ज्यादा तेजी है कि मासिक धर्म 20 दिन बाद ही हो रहा है। तो मान लिया जाए अगर किसी को 45 दिन बाद ही मेंसेस होते हैं, लेट होते हैं, नुक्सिया, तो 45 दिन से पहले अगर अगर रेगुलरिटी नॉर्मल मेंटेन की गई है, अगर रेगुलरिटी नॉर्मल मेंटेन की गई है, तो उस लिहाज से 45 दिन से 15 दिन पहले काउंट कर लो। अगर तो मेंसेस इरेगुलर है, कभी 30 दिन पर आ गए, कभी 45 दिन पर आ गए, कभी 20 दिन पे आ गए, तब तो ओवुलेशन फिक्स नहीं है। पर अगर आपका मासिक धर्म का रूटीन फिक्स है, तो अगला मासिक धर्म आने से 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होना है। एक बात। दूसरी बात, अगर जिनको क्यूरियोसिटी है कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूं, या कोई कपल है वो चाहता है कि भाई बच्चा हो, तो उनको ये याद रखने की जरूरत है कि रोजाना अपना पल्स रेट चेक करें। कितना रेट चलता है आपका? नॉर्मल आदमी का 70 to 80 पर मिनट चलता है। आपका रेस्पिरेशन नोट करें, 14 से 16 बार पर मिनट चलता है, पर इनमें आपका कितना चलता है? 14 चलता है, 15 चलता है, 16 चलता है, इसको नोट करके रखें। ये चीजें, और आपकी हीट टेम्परेचर 98.4 तो हम सभी का बोलते हैं, पर सभी का होता नहीं है, किसी का 97 होता है, किसी का 95 होता है, अलग अलग होता है। आपका कितना है? और आप हर वीक का अगर नोट कर पाए, तो आप देखिएगा जिस दिन आपका ओवुलेशन होगा, फिक्स याद रखने की बात, जिस दिन आपका ओवुलेशन होगा उस दिन रेस्पिरेशन रेट घटेगा। नॉर्मल 14 से 16 है, पर आपका क्या है? अगर आपने नोट किया तो उसके मुताबिक जिस दिन ओवुलेशन होगा उस दिन रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा। उस दिन 0.5 to 1 डिग्री टेम्परेचर बॉडी का जितना भी आपका रहता था, 98.4 रहता था, 98 ही सही, अगर 97 रहता तो 97 ही सही, जो आपका फिक्स ब्लड जो टेम्परेचर रहता है बॉडी का, उससे 0.5 से 1 डिग्री एकदम डाउन आ जाएगा। ये चीजें आपको नोट करने की जरूरत है। और जिस दिन आपको पता चला कि आज मेरा ओवुलेशन हुआ है, आज मेरा ओवुलेशन हुआ है, तो उससे 2 दिन 24 से 48 घंटे आपके लिए वो पीरियड है जो गृहस्थ का टाइम है। और उस गृहस्थ के टाइम में अगर आदमी की तरफ से स्पर्म का जो हेड, नेक, बॉडी नॉर्मल है,
वो नॉर्मल को भी हम क्या बोलते हैं, 80% एक्टिव एंड मोटाइल। गिन तो दिए हमने 120 से लेकर 200 मिलियन, 200 मिलियन तक हमने गिन दिए कि हो जाते हैं, लेकिन इनमें हेल्दी कितने हैं, लड़ने योग कितने हैं, आगे फौज कितनी स्ट्रांग है। भर्ती करने से क्या होता है, जब पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो जितने पंजाबी होते हैं उनको आगे कर देते हैं। चीन है तो चीन के आगे भी पंजाबियों को कर दिया, और वो जो बाकी उधर के हैं वो क्यों नहीं आते भाई। लड़ने की समर्था चाहिए। स्पर्म की लड़ने की जो समर्था है वो इस बात से होती है कि जितने भी वो हैं उनमें से 80% एक्टिव एंड मोटाइल चाहिए। ये माइक्रोस्कोप में आपने देखा होगा ना, डॉक्टर लोग देखते हैं, लैब टेस्ट में करते हैं, तो एक लैब टेस्ट में, एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में हमें 4 से लेकर 14 तक स्पर्म दिखाई देने चाहिए नॉर्मल क्वांटिटी में। 4 से 14 तक स्पर्म नॉर्मल दिखाई देने चाहिए, और उनमें से 80% ऐसे होने चाहिए जिनका हेड नॉर्मल है, हेड नॉर्मल है, और उसकी नेक है, और उसकी जो बॉडी जिसको हम पूंछ बोलते हैं वो भी है, और उसकी वजह से वो मछली की तरह मूव कर रहा है। और अगर मूव नहीं कर रहा, अंग पूरे हैं, तो भी वो अपाहज है। और उसका सिर है, सिर के आगे जैसे आपने देखा होगा ना, तीर होता है ना, तीर कमान का तीर, तीर के आगे एक तीर मुखी लगी होती है तीखी, जो आगे जाके जहां तीर बज चलता है वहां चुभ जाती है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और हरेक स्पर्म के आगे वो चेक करना है कि एक्रोसोम है। अगर एक्रोसोम है तो फिर ठीक है। ये 80% चाहिए टोटल में से। मान लीजिए हमने 100 काउंट किया तो उसमें 80% जो है हमारे पास एक्टिव एंड मोटाइल स्पर्म चाहिए, जो पूरे हेल्दी तंदुरुस्त हों। ये कंडीशन है। और अब की बात फिर मैं वहां आ रहा हूं कि ओवुलेशन के विद इन 2 डेज, 15-16 दिन, ये आपके लिए वो पीरियड है जब आपकी प्रेगनेंसी होनी है। क्योंकि वेजाइनल एरिया से स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने, बचाते पहुंचने के लिए 24 to 80 आवर्स लगते हैं, 24 to 48 आवर्स लगते हैं। ओवम को भी ओवरी से निकलकर वहां तक पहुंचने के लिए 24 to 48 आवर्स लगते हैं। तो इसलिए अगर एक्टिव एंड मोटाइल स्पर्म ना हुए तो जितने भी जाएंगे, अब किसी के घर में दाखला लेना हो तो इतना आसान तो नहीं है ना कि आसानी से किसी के घर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। आपने देखा होगा अंडे को, अंडे की बाहर की जो शेल होती है ना, वो बहुत सख्त होती है। इवन जब अंडा मुर्गी से पैदा होता है तब भी आप देखो वो काफी सख्त होती है, और इतना आसान नहीं है कि उसको भेद कर उसके अंदर जाया जाए। और इसलिए जितने स्पर्म वहां जाते हैं ना, वो सारे के सारे उसको घेर लेते हैं। हमने कहा 100 उधर गया, 100 इधर गया, 100 स्पर्म ने एक ओवम को घेर लिया और कोशिश की कि हम इसके अंदर जाएं। जमरावत का किला तोड़ना है, अकाली फूला सिंह गया है वहां पर और उसको फतेह करना है। तोड़ने की कोशिश बहुत की कि किले तोड़ दें। हाँ जी। सो खैर, ये बातें हैं इतिहास की। तो ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, और तोड़ने की कोशिश में अल्टीमेट बेचारे आप मर जाते हैं। जब आप मर जाते हैं तो ऑटोलाइसिस होता है, कुदरत का नियम है बना हुआ इस तरह। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या, ये गल सड़ जाते हैं, ये रूढ़ी बन जाती है। जब रूढ़ी बन जाती है तो आपने कभी रूढ़ी को खोद कर देखा है? भाप निकलती है, बहुत हीट निकलती है, उसमें बहुत गर्मी होती है, ये आप सबने देखा होगा। और वो जो भाप, जो हीट निकलती है ना, दैट इज एसिडिक इन रिएक्शन। और उस एसिडिक रिएक्शन की वजह से जो बाहर की दीवार है ओवम की, वो भी गल जाती है। ये तो मरे ही है, ओवम की दीवार भी गल जाती है। और लेट कमिंग, अब इसीलिए कहा था कि 80% एक्टिव मिटाइल चाहिए। जितनी भी फौज है उसमें कम से कम 80% मिटाइल होंगे, तो कोई गाल नहीं, 20 पीछे भी रह जाएंगे खुराक वगैरह सप्लाई करने के लिए। आगे जाने वाले तय होंगे, तो आगे जितने जो तेज तेज थे वो दौड़ के गए, बेचारे मर गए। जो पीछे उसके बाद गए वो भी तो ताकतवर होने चाहिए। उस पर डिपेंड करती है हमारी जनरेशन
कि हम कैसे हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने क्या कुछ हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो पीछे आने वाला स्पर्म था वो कितना एक्टिव एंड मोटाइल था। और जो जाता है अब दीवार एसिड की वजह से, दीवार ऑटोलाइसिस के उनके रूढ़ी बनने की वजह से, पंजाबी जी कहें रूढ़ी बनने की वजह से वो सॉफ्ट हो गई है, तो जो बाद में स्पर्म आया वो बेचारा इसमें एंटर करने के काबिल हुआ। और उसका भी केवल हेड अंदर जाता है। वो जो एक्रोसोम है, आगे तीखी उसकी चोंच है, वो जाती है और उसके साथ अकेला हेड ही अंदर जा पाता है, और उसके बाद बाकी सारा पोर्शन उसका बाद रह जाता है। उसका एक बिजली घर है, जो नेक है ना, नेक में उसका बिजली घर होता है, जहां से उसको बिजली सप्लाई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया उसको बोलते हैं। वो बेचारा मुश्किल से अंदर दाखिल हो पाता है कि इसकी अपनी भी तो कोई एनर्जी हो, और इसकी अपनी एनर्जी हो तो उसके बाद फिर वो जब उसको मिलेंगे तो फिर आगे मुकाबला होगा, फिर इससे तय होगा। यहां पर वो दिन है जहां पर ये फैसला हो गया, यहां पर ये फैसला हो गया कि आने वाला जीव लड़का होगा या लड़की, क्योंकि एक्स एक्स औरत के पास तो है ही एक्स एक्स, आदमी के पास एक्स एंड वाई है। पहले औरत के एक्स एक्स का आपस में मुकाबला होता है, और वो एक्स एक्स का जो मुकाबला होता है उसमें जो स्ट्रॉन्गर एक्स होता है वो आगे आता है। और इधर आदमी के स्पर्म का जो हेड था उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स थे, और उनका मुकाबला होता है। अब उनमें जो एक्स या वाई स्ट्रॉन्गर है वो इससे साथ मुकाबला करेगा, और आपस में मुकाबले का मतलब ये फ्यूज करेंगे, दे विल फ्यूज ईच अदर, एक दूसरे में घुस जाएंगे, एक बनने की कोशिश करेंगे। और फैसला तो यही हो गया था 16वें दिन। 16वां दिन जो था उस दिन फैसला हो गया था कि भाई आने वाला जीव जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी, कौन सा बच्चा आगे आने वाला है। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि सेकंड ट्रिमेस्टर में ये ऐसा समा हमारे पास आया जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन हो गई, और इस सेक्स डिटर्मिनेशन में वो जो चीज वहां पर थी, जो उस दिन हुई थी 16वें दिन या 15वें दिन हुई थी, उसका कुछ सबूत हमारे पास आ गया। और वो सबूत को कैसे हमने जाना कि भाई वो जो अंदर का स्ट्रक्चर बना था, पेट की एक दीवार बन गई थी। औरत के जनन अंग जितने भी हैं वो पेट के अंदर होते हैं। ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ये उसके अंदर होते हैं। और आदमी के जितने भी जनन अंग हैं वो बाहर होते हैं पेट के, क्योंकि उनको हीट कम चाहिए, औरत के अंगों को हीट ज्यादा चाहिए। वो कुदरत ने शरीर के अंदर पैदा किए हैं, ये कुदरत ने शरीर के बाहर पैदा किए हैं। अब वो स्पॉटिंग हम बता रहे हैं कि स्पॉटिंग हो रही है जब ये सेक्स अंग जो बनने शुरू हुए। हमने ये कहा 14 वीक के बाद, 14-15 वीक में ये सारी बनतर है, बननी शुरू हो गई, सेक्स अंगों के निशानदेही हो गई, तो फिर हम जान सकते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की। कैसे? कैसे कि वो जो स्पॉटिंग हुई है ना, जो ईंटें रखी हैं ना नी की, वो अगर पेट की दीवार के अंदर-अंदर हैं, तो लड़की होगी, और वो अगर पेट के बाहर हैं, तो फिर लड़का होगा। यही चीज़ हम उस वक़्त अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे उत्तर की पड़ताल। सवाल तो हमने निकाला था 16 दिन पे, 15 दिन में या 16 दिन में, ओवुलेशन के बाद 2 दिन में। अब ये उस उत्तर की पड़ताल है कि हम ये जान पाएँ। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड है कि वायेबल नहीं है कि इस हालात में बार-बार उसको अल्ट्रासाउंड करें। तो 20 वीक, 20th वीक में हम ये अलाउ करते हैं कि उसका अल्ट्रासाउंड करो, तब तक आदमी के जनन अंगों की और औरत के जनन अंगों की पूरी रेख-रेखा तैयार हो चुकी होती है। रूपरेखा तैयार हो गई तो कोई कोई भुलेखे वाली बात नहीं। पर इस बात पे यकीन मत करना कि मैंने कहा कि अब तो भुलेखे वाली बात नहीं, क्योंकि कुदरत के नियम में बड़े अचंभे होते हैं। आदमी अभी इतना सब कुछ नहीं जानता। आपने देखा होगा कि बच्चा जवान हो गया, या कई बार बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो बोलते हैं तो लड़की है, तो लड़का है।
जब अब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ओ यार उनकी लड़की थी वो तो लड़का हो गया, या उनका लड़का था वो तो लड़की हो गई, लड़की बन गई। मतलब वो जो पीछे की लड़ाई जो शुरू हुई थी ना ओवुलेशन के 2 दिन बाद, वो कभी कोई जीतता था, कभी कोई जीतता था, कभी कौरव जीतते थे, कभी पांडव जीतते थे, कभी कौरव जीते, कभी पांडव जीतते थे। वो 29th दिन तक उनकी लड़ाई चलती रही। ये लड़ाई चल रही है, लेकिन ठीक है, शारीरिक अंगों के मुताबिक हमने जन्म के समय ये निर्धारित कर दिया कि उनका लड़का हुआ है। हालाँकि ये भी उत्तर की पड़ताल है। उनकी लड़की हुई है। लेकिन ये लड़का और लड़की का कहना भी हमारा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्यूबर्टी के समय अंदर की वो जो क्रिया लड़ाई चल रही थी स्टार्टिंग में, अभी खत्म नहीं हुई, जिसको हम नहीं जानते, जो हमारे सामने नहीं है। और कुछ केसों में, कुछ परसेंटेज, ऐसा नहीं कि सभी में, कुछ परसेंटेज केसों में ऐसा होता है कि कोई लड़का लड़की बन के 12 साल 13 साल बाद पैदा होता है, कोई लड़की लड़का बन के पैदा, मतलब चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ सेक्स हो जाता है। अब इसके आगे एक और त्रासदी आने वाली है, जिसको थोड़ा सा इशारा मात्र, क्योंकि आज का समा मेरा खत्म हो रहा है, उसको थोड़ा हिंट मात्र मैं दे दूं, क्योंकि आज मैं पंजाबी का प्रोग्राम का भी समा ले गया, क्योंकि प्रवास रेडियो वाले आज नहीं आएंगे, वो कल भी नहीं हो सकेंगे, तो उसका थोड़ा मैं आपको रेफरेंस दे दूं। आपने सुना होगा कि मापे कोशिश कर रहे हैं कि भी मेरी लड़की जवान हो गई है या मेरा लड़का जवान हो गया है। अब गांव में तो नहीं है, क्योंकि बहुत रिजर्वेशन है, बहुत रिजर्वेशन है, बच्चे बेचारे बोल ही नहीं सकते कि कुछ बात कह पाए। हाँ जी, जितने भी एजुकेटेड लाइन में या शहरों में लोग ने, या जितने भी फ्रैंक हो गए ने, माँ बाप ये सोच रहे हैं कि मेरा लड़का जवान हो गया, अब उसके लिए लड़की देखें, इसकी शादी करेंगे। और वो बोलता है कि ना भाई, मेरा तो लड़की की तरफ कोई ख्याल ही नहीं, मैं तो लड़की की शादी नहीं करूंगा। शारीरिक बनतर उसकी आदमी की है, मानसिकता उसकी औरत की है। गलत शरीर में गलत भावनाएं आ गई, और ये उसी वक्त हुआ जब पहले 14 से 16 दिन के बाद ये क्रिया हुई थी। तब से लेकर वो चली हुई लड़ाई ये खत्म नहीं हुई। और आज क्या है कि ये तो होमोसेक्सुअल है, ये तो लेस्बियन है। आदमी का आदमी से संपर्क करना या शादी करना हम लोग विवर्जित समझते, कुदरत के असूल के अगेंस्ट समझते, पर उनकी तो गलती नहीं है ना। पहले तो हम वहाँ उनकी गलती समझते थे। अब मेडिकल साइंस जैसे-जैसे इस बात की रिसर्च करती है, तो अब हम उसकी गलती नहीं समझते ना, क्योंकि हम समझते हैं ये तो हार्मोन्स का खेल है। अगर हार्मोन्स का खेल ना होता, तो फिर लड़का बन के पैदा हुआ था, लड़के वाली उसकी हरकतें होती। लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि हार्मोन्स अंदर आपस में अभी उनका स्ट्रगल चल रहा है, और ये कंडीशन कि माँ-बाप दाज बनाएँ कि वरी बनाएँ, इसका ही फैसला नहीं हो पाता। वो दाज बना रहे हैं, और या वरी बना रहे हैं, और आगे जाकर वो लड़का या लड़की बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा तो लड़के के साथ शादी करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा लड़की के साथ, अब बड़ा गाँव वालों को तो बहुत अचंभा लगता होगा। लेकिन जिस समाज में मैं यहाँ रहता हूँ, उस समाज में लोग खुलकर मेरे पास आते हैं, लोग इस तरह के, खुलकर बोलते हैं कि भाई मेरे डैड को, मेरे मॉम को ये बता दीजिए कि मुझे लड़की से शादी नहीं करनी है। ये लड़की बोलती कि नहीं, मैंने तो शादी नहीं करनी है, मेरा तो शादी करने का, अरे भाई क्यों नहीं करनी है? वो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ये बातें वो लोग बोलते हैं। तो मतलब क्या है, अब हम तो जानते हैं मेडिकल साइंस के। अब ये इसकी रिसर्च तो बहुत, जेनेटिक की रिसर्च तो बहुत आगे निकल गई है ना। तो वो ये समझते हैं कि इनका गुनाह नहीं है। इनका गुनाह नहीं है, इसके अंदर वो जो हार्मोन्स की प्रवृत्ति उस वक़्त थी, वो जो मुकाबला उस वक़्त चला था, अभी वो खत्म ही नहीं हुआ। और नहीं खत्म होने की वजह से ये मानसिक पर, अब ये तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए ना, कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसी लड़की को देना शुरू कर दिया जाए, तो उसके दाढ़ी मूंछ आ जाएगी। और अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉम्बिनेशन किसी दूसरी इसको लड़के को देना शुरू कर दिए, तो उसकी दाढ़ी खत्म हो जाएगी। और इसी तरह ही जैसे आप देखते हैं कि मेनोपॉज़ हो जाता है, औरतों को मासिक धर्म बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो उनको दाढ़ी मूँछें आनी शुरू हो जाती हैं।
आपने आम चाहे गाँव हो, शहर हो, आपने सभी जगह नोट किया होगा। अगर वो बीबी जगीर कौर की तरह ब्यूटी सैलून ना जाती हो, अगर ब्यूटी सैलून नहीं जाती, तो फिर बहुत सारी माताओं को मेनोपॉज़ के बाद आम तौर पे दाढ़ी पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, मूंछ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये होना शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया ਜਦੋਂ उसके मासिक धर्म नहीं हुए, ओवुलेशन नहीं हुआ। जब मासिक धर्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि वो जितनी भी चीज़ें थीं, वो बंद हो गई। और दोनों ही पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, वो औरत में भी बनता है। अगर किसी आदमी को कोई बकरे को छोले दे दो ना, तो सामने शेर बाँध दो, तो वो मोटा नहीं होगा, छोले भावें खाता ही रहे, ताकत खाता ही रहे, डर रहेगा उसको। तो इस डर को बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए शायद शायद कुदरत ने औरत के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की परसेंटेज पैदा की है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी औरत के अंदर पैदा की है, क्योंकि ये हार्मोन स्टिमुलेट होते रहे जिद में कह लें कि जानने के लिए तो यही आसान बात है। जिद में कह लें कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन औरत के शरीर में ना होता, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन रुक जाती। का किस लिए यार करना है? ठीक है, रोटी तो मिल रही, क्या काम करना है? और जब बाहर निकलते हैं तो यार दूसरे तो उसने तो भई वो तो डॉक्टर बन गया है, वो तो इंजीनियर बन गया है, वो तो वकील बन गया है, तो मुकाबला शुरू हो जाता है। नेचर का असूल है ये, और उसी असूल से कुदरत ने भी एक औरत के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी पैदा किया हुआ है। और हमारे शरीर में भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की नहीं तो शरीर में लचक रहती ही नहीं, बिल्कुल लचक नहीं रहती। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की काम है। और इसी तरह ही जो वो प्रोजेस्टेरोन की जगह थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मेनोपॉज़ की हालत में कमी होती है, माँ चुर्डियाँ पड़ जाती हैं, प्रोजेस्टेरोन इसको रोकता है। इलास्टिसिटी लचक होती है, ईस्ट्रोजन इसको रोकता है। तो अब क्या है, अब तो ना ईस्ट्रोजन है, ना प्रोजेस्टेरोन है, तो चेहरे पे झुर्रियाँ, हाथों पे झुर्रियाँ, ये सब होनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये बंद हो गए, तो वो जो आदमी छुपा बैठा था हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन किसी औरत के किसी माँ के शरीर में, वो कहता है कि मेरी तो परसेंटेज इतनी है ही है ना, मेरा तो हिस्सा बनता ही है इतना। और उसकी प्रोडक्शन से चेहरे पे बाल, दाढ़ी में, मूंछ में ये सब आने शुरू हो जाते हैं। और शरीर में बाकी और तरह की बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती, जैसे जनन अंगों में ड्राइनेस। माताएँ बेचारी हमारी गाँव में रहती तो बोलती नहीं ना इस बात को। हमारा समाज इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ अमेरिकन स्टाइल में तो ये सब लोग जानते हैं, जो करते हैं। और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की या एस्ट्रोजन हार्मोन्स की हार्मोनल क्रीम्स मिलती हैं, ताकि वो जो इलास्टिसिटी है जनन अंगों की, वो मेंटेन रहे। हमारे यहाँ ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता। लेकिन ये इसीलिए है कि कुदरत का नियम तो है। कुदरत के नियम के मुताबिक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कुदरती खत्म हो गया। क्यों बाल सफेद हो गए हमारे? ना इनको विटामिन ए मिला, ना इनको विटामिन डी मिला, ना मेलाटोनिन वाली वो लेयर की इसकी बात हुई, तो ये बेचारे सफेद होने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो किसी तरह मेंटेन किया जाए, अब लोग कहते हैं, "भई ये दवाई खाओ जी, बाल काले रहेंगे।" कुछ औले खाओ जी, हाँ जी। वो क्या है? वो उन चीज़ों को पूरा करता है, उनकी प्रोडक्शन को पूरा करता है, जिसकी वजह से कई लोगों के बाल बड़े लंबे समय तक काले रहते हैं। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि ये जो प्रोग्रेस हो रही है उस बच्चे की, आज इस वक़्त 14 से 15 वीक के में जब हम ये निर्धारित करते हैं, दूसरी बार उत्तर की पड़ताल हो रही है कि भाई होने वाला बच्चा जो है, जो सामने आएगा, अब तो हम ये कह सकते हैं कि जो सामने आएगा, क्योंकि ये नहीं पता कि जो सामने आ रहा, आँखों का देखा हुआ भी झूठ हो सकता है ना? आँखों ने जो देखा, वो भी आगे जाके गलत हो सकता है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि वो जो उस वक़्त हुआ था, 16 के 14 के बाद 15 और 16 के दिन में जो कुछ हुआ था, और उसका उत्तर की पड़ताल ये है कि पैदा होने वाला बच्चा है, ये लड़की है या ये लड़का है, ये बात 14 और 15वां वीक की है। उसके बाद फिर आगे
जो शरीर की बनतर है, होंठ है, लिप्स हैं, नाक है, आंख है, ये सब चीजें बननी, तामीर होनी, कंप्लीट तामीर तो हो चुकी है, कंप्लीट होनी शुरू हो जाती हैं और इनका स्ट्रक्चर जो बनना शुरू हो जाता है। इस वक्त तक आते आते जो बच्चे का शरीर होता है ना, उसको अगर माइक्रो उसमें अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं ना, तो जैसे अंग्रेजी का लेटर सी होता है ना, जो सी होती है उसका मुंह तो राइट साइड को खुला होता है। जब हम सी लिखते हैं ना, तो सी को लिखते हैं, मुंह उसका राइट साइड खुला करते हैं। लेकिन इस बच्चे का मुंह उल्ट होता है, लेफ्ट साइड को सी होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हम अल्ट्रासाउंड में इसकी देखते हैं और देखते हैं कि उसमें ऐसे आगे-आगे डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। तो ख़ैर ठीक है, आज का हमारा समय समाप्त हो गया। सॉरी पंजाबी सुनने वालों को आज ये प्रोग्राम नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि जितने लोग हिंदी समझ सकते हैं, वो पंजाबी भी समझते हैं और पंजाबी जितनी समझते हैं, हिंदी समझने वाले भी काफ़ी उसको समझ लेते हैं। सो आज का हिंदी में पूरा समय निकल गया, इस बात को बताते-बताते। तो हम सेकंड ट्रिमेस्टर की बात कर रहे हैं कि सेकंड ट्रिमेस्टर में दूसरे 3 महीने, यानी 6 महीने की प्रेगनेंसी तक की बात हम कर रहे हैं कि इसमें बच्चे के अंग पूरी तरह डेवलप हो गए, बच्चे का सोना और जागना शुरू हो गया, बच्चे के बाल पूरे शरीर में आ गए, बच्चे की चमड़ी पूरी सख्त हो गई और बच्चे के जनन अंग पूरी तरह हो गए और बच्चे का माँ के पेट में कूदना, जंप करना शुरू हो गया और स्लीप पैटर्न स्टार्ट हो गया। मैंने ये इसकी बात ख़ास तौर पे कही क्योंकि माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं कि आज सुबह से लेकर मेरा बच्चा पेट में हिला ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन उसको बताने की ज़रूरत है कि नहीं, अब उसका भी सोने का टाइम है। उसने अपना पैटर्न सेट कर लिया है और उसके मुताबिक वो सोना जागना भी है। अगर आप देखना चाहती हो तो अंधेरे कमरे में चले जाओ और टॉर्च जगाकर अपने पेट के ऊपर मारो। आपको पता चलेगा एकदम वो जंप करेगा। जैसे जा आम आदमी के चेहरे पे लाइट मारो ना तो जाग जाएगा एकदम, वही कुछ। तो मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम उसका पूरा काम कर रहा है, लेकिन उसने अपना पैटर्न सेट कर लिया है और ये हमारा है सेकंड ट्रिमेस्टर। अब फिर उसके बाद हम चलेंगे थर्ड ट्रिमेस्टर में और थर्ड ट्रिमेस्टर में भी बहुत अजीबो-गरीब बातें होंगी जो शायद आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि हैं, अंदर ऐसा-ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। हम तो सोचते थे कि बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद ये ग बातें होंगी, लेकिन बच्चे के माँ के पेट में भी ऐसा होना शुरू हो जाता। तो ये बातें हम आपसे परसों करेंगे। आज का प्रोग्राम हो गया तो कल आज इंडिया में दिवाली है और या बंदी छोड़ लोग कह रहे हैं क्योंकि बंदी छोड़ का लिमिट ना ना बनता नहीं है टाइम उसके साथ क्योंकि बंदी छोड़ और उसका 6 महीने का तकरीबन गैप है कि जब गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले से आजाद होकर उसके बाद अमृतसर पहुंचे थे, कोई संबंध नहीं बनता उसके। हाँ जी, सो ख़ैर ठीक है, जैसे भी विधान है, वो चल रहा है, उसके मुताबिक आप आज मनाओ, यहाँ अमेरिका कनाडा वाले जो है वो कल आपका वो भूतों का दिन मनाएँगे और उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे। आप सबका रब राखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।